सो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द एपिलेप्टिक अटैक? अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता है, सीजर अटैक आता है, अगर आपके सामने पेशेंट है, सो हाउ यू विल प्रोवाइड द फर्स्ट एड? सो देयर आर डिफरेंट वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. प्लीज गो एंड सर्च व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द एपिलेप्टिक अटैक. सो दीज आर द प्रायोरिटीज. अगर आपके सामने किसी को अटैक आया तो सबसे पहले क्या क्या चीज को आप प्रायोरिटी दोगे? अटेंशन टू द वाइटल साइंस, है ना, सांस इसकी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है. अगर सांस नहीं चल रही तो क्या आप माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन दोगे या आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देंगे? क्या आप ऑप्शन वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा. देन रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सीजर इफ दे रिज्यूम, टू बी फॉलोड बाय मैनेजमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, सीएनएस इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट एंड ड्रग टॉक्सिसिटी. अगर ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करना है उससे पहले आप किन चीजों को जो है प्रायोरिटी देंगे उसके बारे में. When the patient is not acutely ill, अगर उसको एकदम ज्यादा acute अटैक नहीं है, so evaluation should initially focus on whether there is a history of earlier seizure. earlier seizure की history है तो मतलब इसको epilepsy है. This is the algorithm and this is the treatment plan, treatment algorithm. So I will send you the PPT. Please go through it, go through this algorithm, how the patient or how the treatment plan can be decided for the treatment of epilepsy. Different epileptic drugs are available. So how you will treat? What is the goal? What is the objective of treatment of the epilepsy? The overall goal, completely prevent the seizure. अगर ट्रीटमेंट हमने चालू किए हैं एंटी ड्रग्स का तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सीजर क्या होना चाहिए? कंप्लीटली बंद होना चाहिए, नहीं आना चाहिए अटैक उसको. Without causing any untoward side effect, there should not be a production of any type of the side effect or adverse effect. Preferably a single medication, single drug से start करो. Multiple drug अगर नहीं दी तो ज़्यादा अच्छा है to avoid the drug interaction. डोसिंग शेड्यूल इजी फॉर द पेशेंट टू फॉलो. पेशेंट कंप्लायंस बहुत जरूरी है. अगर पेशेंट कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होगा एपिलेप्सी के अंदर, इट विल बी वेरी डेंजरस. सीजर क्लासिफिकेशन, जो कौन सा टाइप का सीजर है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन से ड्रग आपको वहां पर देने हैं टू द पेशेंट. द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन. ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड द न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. दीस आर द न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, लैमोट्रिजिन एक्सेट्रा. दीस आर द older anti-epileptic drugs. The another classification for the epilepsy is so this is the classification of the drugs which are used in treatment of epilepsy. Barbiturates, very good example, phenobarbital, popular drug. Then deoxybarbiturates, primidone, Hedentine derivatives, those are the important drug. Phenytoin is a very important drug for the treatment of epilepsy. Phenytoin. Immunostimulants, carbamazepine, important drug. Succinimide, ethosuximide, aliphatic carboxylic acid, valproic acid, again important drug. Benzodiazepine, clonazepam, diazepam, etc. Phenyltrazine, lamotrigine, also important drug. Cyclic GABA analog, gabapentin, pregabalin. The newer drugs, vigabatrin, topiramate, those are the different important drugs. So this is the classification of the drugs treatment, the anti-epileptic drugs. Diagnosis, as we discussed earlier, how the different diagnostic techniques are important and available for the epilepsy. Here is one another important slide. Treatment during the seizures. अगर सीजर अटैक आता है तो क्या करेंगे? Convulsive seizures may look frightening, but the person is not in the pain. है ना, जब देखते हैं पर्सन को ऐसा लगता है बहुत झटके आ रहे हैं, बहुत तकलीफ है, मुंह से फेस निकल रहा है, but the person is not that much in pain. Will usually have no recollection of event afterwards and is usually non seriously injured. लेकिन ये नॉन सीरियसली इंजर्ड डिपेंड करता है पेशेंट किस कंडीशन में है, कहाँ पर बैठा था, किस हालत में बैठा था, कहाँ पर था, है ना. अगर गाड़ी चला रहा है या ट्रेन में बैठा है, ऐसी जगह बैठा है कि जहाँ से गिरने का डर है, गिरने के चांसेस है, वहाँ अगर सीजर अटैक आया, या फिर किसी नोकीली जगह है, कुछ बेंच वगैरह है, आसपास में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, दे मे हर्ट थ्रू द पेशेंट. इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज रेयर नेसेसरी. People should however be made as comfortable as possible. है ना, वहाँ पर गर्दी नहीं करना. जहाँ पर पेशेंट को अटैक आ रहा है एपिलेप्सी का, सब मिलकर वहाँ पर खड़े हो गए, गर्दी कर दिए, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नहीं. क्या करो, वहाँ पर उसको जगह होना, प्रॉपर्ली वेंटिलेशन होना चाहिए. प्रिफरेबली lying down, as to the flavor is sitting, cushioning the head and loosening any tight clothing or neck weight. अगर टाई वगैरह बटन है तो खोल दो, गर्दन उसकी प्रॉपर्ली डायरेक्शन दो ताकि उसका जो है तो फेस वगैरह निकल रहा है तो उसका लैरिंग्स वगैरह चोकअप ना हो. इस तरह से फर्स्ट एड है, तो देखो उसको. During seizure, people should not be moved unless they are in a dangerous place. ठीक है. Partial attacks are usually less dramatic. No attempt should be made to open the person's mouth or force anything between the teeth. जनरली ना दांत खिली बैठती है ना, दांत खिली बढ़ जाती है पेशेंट की, तो लोग क्या करते हैं, अक्सर पुराने लोग कुछ चमचे वगैरह से खोलने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ चप्पल वगैरह सूंघाते हैं. तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए. No drinks should be given after an attack.
nor should extra anti-epileptic drugs be administered. It is commonly felt that seizure may be life-threatening, but this is a seldom the case. Life-threatening नहीं होते हैं और जनरली ऐसा होता है कि ये जो एंटी-इपिलेप्टिक ट्रीटमेंट जो चल रहा है इसका, अगर अटैक आया तो फिर से उसको ड्रग देंगे नहीं, जो उसका शेड्यूल है ड्रग का वो शेड्यूल भी दो, ज्यादा एक्स्ट्रा ड्रग देने की जरूरत नहीं है. आफ्टर अ सीजर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे विद द पर्सन एंड ऑफर reassurance until the confused period has completely subsided and the person has a recovered fully. जब प्रॉपर एकदम नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट तब तक उसके साथ में रहना जरूरी है. हाँ, these are the conditions if a seizure persists for more than 10 minutes, if a series of seizure occur or if the seizure is particularly severe, then intravenous or rectal administration of 10 to 20 milligram of diazepam for adults with a lower dosage being used in children is advisable, है ना, to control the सीजर्स, सीवियरिटी ऑफ दी. अगर ये कंडीशन प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हुआ, सीजर ज्यादा टाइम तक हो रहा है, तो ये लीड कर सकता है स्टेटस इपिलेप्टिकस को. स्टेटस इपिलेप्टिकस इट इज इमरजेंसी, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी. टोनिक क्लोनिक सीजर हो सकते हैं उसके अंदर, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, डैमेज हो सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, ये स्टेटस इपिलेप्टिकस. इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस इज सपोर्टिव एंड मे इंक्लूड, है ना, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज स्टेटस इपिलेप्टिकस? गिव द मैनेजमेंट ऑफ status epilepticus. Okay, so positioning the person to avoid injury, supporting the respiration, maintaining blood pressure, correcting the hypoglycemia. Drugs used include intravenous lorazepam or diazepam. Alternative medicines include the midazolam. Alternative buccal midazolam has been advocated. In severe cases, phenytoin, clonazepam or phenobarbital sodium may be required. So this is the status epilepticus, in which the status epilepticus condition, the person is in status epilepticus, there is a pupillary enlargement. It is a medical emergency. It is most serious form of the epilepsy. In this condition, most a medical emergency required. It may be the tachycardia, hypertension, pupillary enlargement. The seizures are rapidly recurrent without return of the full consciousness. Rapidly recurrent है, 15 मिनट तक बार-बार आ रहे हैं सीजर और full consciousness जो है नहीं मिल रहा है उसको 10-15 मिनट के अंदर. It may be due to the intracranial infection, रैपिड सिसेशन और चेंज इन द थेरेपी. तो ये आपकी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी है, तो एकदम से बंद नहीं करना है. फेनिटोइन वगैरह भी दे रहे तो थोड़ा धीरे धीरे तो डोज कम करते करते फिर जो है तो ड्रग ट्रीटमेंट स्टॉप की जाती है. सो दिस इज द स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेटस एपिलेप्टिकस. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजर, है ना, टाइप्स ऑफ सीजर एंड चॉइस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. तो कौन से टाइप का सीजर प्रोड्यूस हुआ है, तो कौन से ड्रग्स उसके अंदर इंपॉर्टेंटली यूज किए जाते हैं. सो सीजर टाइप, जनरलाइज सीजर, पार्शियल सीजर, इनफेंटाइल स्पाज्म. जनरली इनफेंटाइल स्पाज्म के अंदर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड विगाबैक्टीरिन दिया जाता है. जनरलाइज सीजर टोनिक क्लोनिक है, टोनिक अटोनिक, मायोक्लोनिक, अब्सेंस. अब्सेंस सीजर के अंदर इथोसक्सीमाइड इंपॉर्टेंट ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है. यहाँ से टोनिक क्लोनिक के सारी सीजर के अंदर जो है क्लोबाजाम, बार्बिटोएज, बेंजोडाइजेपाइन्स, है ना, वाल्पुरिक एसिड, दीस आर द इंपॉर्टेंट ड्रग्स. सिंपल पार्शियल सीजर के अंदर जो है तो आपका कार्बामेजेपाइन, फेनिटोइन, दीस आर द phenobarbital, gabapentin, those are the drug treatment plan for the different types of the seizures. Now, what is the mechanism of action of the anti-epileptic drugs? क्या प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट? जनरली मैंने आपसे कहा था, देखो, there is a sodium ion flow for the generation of action potential. इसके अंदर क्या हो रहा है सीजर के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर हाइपर एक्साइटेशन, है ना, जो आपके एक्साइटेबिलिटी है न्यूरॉन्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ड्यू टू व्हाट The abnormal firing of the neuron takes place. तो हमें क्या करना है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करो या सोडियम का इनफ्लो कम करो, जिसकी वजह से क्या होगा, डिपोलराइजेशन कम होगा, एक्साइटेशन कम होगा. या दूसरे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको कम करो और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसको बढ़ा दो, यानी गाबा के सिक्रेशन को बढ़ा दो या गाबा के यानी सिंथेसिस को अगोनिस्ट दो, गाबा अगोनिस्ट ड्रग दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे और अगोनिस्ट इफेक्ट गाबा के ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. या फिर गाबा का सिंथेसिस बढ़ा दो, गाबा का रिलीज बढ़ा दो. या फिर जो एंजाइम है गाबा ट्रांसअमाइनेज जो गाबा को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो एंजाइम को ब्लॉक कर दो. ये डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग्स के. तो ये देखो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, ये रेस्टिंग स्टेट है, दो चैनल गेट होते हैं, activation gate and inactivation gate of the sodium channels. So arrival of the action potential, depolarization, channel opens, sodium flows in, leads to the depolarization. This is the refractory state of inactivation. So phenytoin, generally phenytoin इन स्टेज के ऊपर ऐड करता है और क्या करता है वहाँ पर स्प्रेड ऑफ इनहिबिशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल नर्व इंपल्स, जो एबनॉर्मल नर्व इंपल्स है उसके स्प्रेड को ब्लॉक करता है, रोकता है. कौन? phenytoin.
दूसरा है देखो फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। देखो यहाँ पर रिसेप्टर्स है, those are the different receptors which are responsible for binding of the benzodiazepines and barbiturates. So GABA receptor GABA क्या करता है, GABA आने के बाद क्लोराइड का नेगेटिव है, ये नेगेटिव आयन से, तो इसके वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन, ये क्या करेगा, एक्साइटेशन को कम करेगा, इनहिबिशन करेगा। सो देखो बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट्स, बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट, गाबा बाइंडिंग साइट, ये देखो यहाँ पर ये साइट्स है। तो क्या होगा, ये इधर क्या है, अगोनिस्ट है, गाबा के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी क्लोराइड चैनल ओपन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन होगा, एक्साइटेशन को ये प्रिवेंट करेंगे। ड्रग्स एक्टिंग थ्रू दिस मैकेनिज्म आर बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपाइन, वेगाबैट्रिन, वाल्पोरिक एसिड, है ना, और गाबा पेंटिन, जिसकी वजह से ये गाबा अगोनिस्ट कहेंगे उसको, है ना, गाबा अगोनिस्ट, गाबा के जैसे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ग्लूटामिनर्जिक सिनेप्टिक, यहाँ पर जो NMDA सेल्स वगैरह रिसेप्टर्स है, और सोडियम कैल्शियम जो देखो यहाँ पर आ रहा है ना, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सो ये अगोनिस्ट ड्रग है ना, अगोनिस्ट ड्रग come and bind to the receptor and produces the effect. Type excitatory, permeable to sodium, calcium, potassium, blocked by magnesium ions in the resting state. Enhancement, glycine binding enhances the ability of glutamate or NMDA to open the channel. ये उसके अगोनिस्ट है, NMDA, MPA, काइनेट। तो डिफरेंट ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं, देखो फिनोबार्बिटोन 1912 में डिस्कवर हुआ, दिस आर द फार्माकोकाइनेटिक। Disadvantage of the sedation of phenobarbital is the sedation, nystagmus. What is nystagmus? What is ataxia? What is hyperactivity in children? Please read it and give me the answers. Phenytoin, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पूछ सकता है, व्हाट इज फेनिटोइन, व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ फेनिटोइन, है ना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फेनिटोइन जनरली ब्रेन के ऊपर, सीनेस के ऊपर एक्ट करता है और स्टेबलाइजेशन करता है हार्ट सेल्स को, हार्ट मसल्स को। तो सिंथेसिस इन 1908 जर्मन केमिस्ट है सर हेनरिच ब्लिट्ज, है ना। इसका एडवांटेज है, ओल्ड एज नॉन सीडेटिव एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, ये ड्रोजिनेस नहीं करेगा। अक्सर दूसरे ड्रग जो है फेनिबार्बिटन वगैरह ड्रोजिनेस करते हैं, लेकिन ये ड्रग जो है ड्रोजिनेस नहीं करता। फर्स्ट क्लिनिकल यूज इन 1937। सो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक, डोज, साइटोक्रोम P450 वगैरह रिस्पांसिबल है। Those are the adverse reaction of phenytoin. So tell me what is Stevens-Johnson syndrome, है ना। उसका आंसर दो मुझे, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है। Those are the different types of the side effects or adverse reactions of the phenytoin. Phenytoin also causes the fetal phenytoin teratogenic reaction, है ना, fetal phenytoin dysplasia वगैरह होता है। So teratogenic है ये ड्रग, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। Those are the phosphenitoin drug. Those are the effects of the phosphonitine. Valproic acid, another important drug. What is mechanism of action? Frequency depend prolongation of sodium channel inactivation. सोडियम चैनल को इनएक्टिवेशन करेगा, सोडियम नहीं आएगा, ज्यादा हाइपर एक्साइटेशन नहीं होगा। एटीन्यूएशन ऑफ कैल्शियम मेडिएटेड टी करंट, स्टेबलाइजेशन ऑफ टी करंट, ऑगमेंटेशन ऑफ रिलीज ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा बाय इनहिबिटिंग इट्स डिग्रेडेशन। Those are the important points in the mechanism action of valproic acid. Those are pharmacokinetic. एलोपेसिया हो सकता है, इसकी वजह से एलोपेसिया, लॉस ऑफ हेयर्स। दिस इज द fetal valporate syndrome, is a major side effect of the phenytoin. Ethosuximide, it has an important effect on calcium current, reducing the low threshold T-type current. Then oxacarbazepine, similar to that of carbamazepine. Carbamazepine वगैरह इसके phenytoin के जैसे उसके इफेक्ट है। Lacosamide facilitate the slow inactivation of voltage gated sodium ion channel. Then another important drug, vegabatrin, है ना, it irreversibly inhibits the major degradation. It irreversibly inhibits the major degradative enzyme for GABA. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो GABA ट्रांसअमाइनेज है उसको इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से GABA का इनहिबिशन नहीं होगा और GABA ज्यादा टाइम तक जो है तो ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर रहेगा। So those are the important treatment options for it. Please refer Satoshkar Tripathi, prepare proper notes, pharmacology, pharmacodynamics, pharmacokinetic of these, all the drugs is very important. Please go through it. Thank you. Purple Day, March 26, the Global Day for Epilepsy Awareness, है ना। तो ये सारे ड्रग्स का जो है तो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक और एडवर्स ड्रग रिएक्शन सब अच्छे से याद करो। थैंक यू, टेक केयर।